The earth itself will stagger like a drunk, sway like a hut in a storm. The world is weighed down by its sins. It will collapse and never rise again. Revelation 6:12 says, "There was a violent earthquake, and the sun became black like coarse black cloth. And the moon turned completely red like blood. The stars fell down to the earth, like unripe figs falling from the tree, when a strong wind shakes it. The sky disappeared like a scroll, being rolled up, and every mountain and island was moved from its place. The polar flip will make the stars race across the sky. And the vacuum created from the reeling of the earth will pull the atmosphere along the ground, trying to catch up, creating what is known as a roll cloud, which will pull with it the dust and ash created from the global earthquake." Psalm 97:5 says, "The mountains melted like wax at the presence of the Lord." The global earthquake will be so bad that every hill and mountain will crumble. Revelation 16:20 says, "And every island fled away, and the mountains were not found." Revelation 6:15 says, "The kings of the earth, the princes, the commanding officers, the rich, the strong, and every slave and free person, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. They told the mountains and the rocks, 'Fall on us, and hide us from the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb, for the great day of his wrath has come. And who is able to stand?' The global earthquake will seem unending, and no one will be able to stand on that day, as the sky vanishes under a roll cloud and the stars fall from heaven. The buildings in every city in the world will collapse into utter destruction, killing millions." Isaiah 30:25 calls it, "the day of the great slaughter, when the towers fall." And just when you thought it couldn't get any worse, Revelation 16:21 says, "Hailstones, weighing about 100 pounds each, fell from the sky on people." After the volcanic ash and dust from the global earthquake has been kicked up into the sky, it will combine with a supercooled atmosphere from the vacuum created by the Earth's reeling. This will result in hailstones, which weigh about 100 pounds each. Matthew 24:30. "Then, the sign of the Son of Man will appear in the sky. And all the peoples of earth will weep, as they see the Son of Man, coming on the clouds of heaven, with power and great glory. The great trumpet will sound, and he will send out his angels to the four corners of the earth, and they will gather his chosen people from one end of the world to the other." Revelation 1:7 says, "Look, he is coming on the clouds. Everyone will see him, including those who pierced him. All peoples on earth will mourn over him." The Bible says everyone on earth will see him, because at that time, the earth will be reeling from the polar reversal, allowing every place on earth to see the coming of Jesus Christ. 1 Thessalonians 4:16 says, "There will be the shout of command, the archangel's voice, the sound of God's trumpet, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died believing in Christ will rise to life first. Then we, who are living at that time, will be gathered up along with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord." This is what is known as the rapture. It will occur when the global earthquake begins, and the Christians will be saved from this terrible wrath of God poured out upon mankind. All those believers who have turned to Christ during the tribulation and are still alive will be gathered together with the resurrected Christians, and will be collected by God's angels from the four corners of the earth and brought together to meet the Lord in the air. 1 Corinthians 15:51 says that when the resurrection happens, Jesus will transform his people, mortals into immortals. And God's army of angels will gather his Christians, bringing them to Jerusalem, where they will appear from heaven with the Lord, to defend Israel. Revelation 19:11 says, "And I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he does judge and make war." Zechariah 14:4 says, "He will take his stand on the Mount of Olives east of Jerusalem, and the mountain will split in half, forming a wide valley that runs from east to west. From here,
Jesus will go out to wage war against the Antichrist and his army, and the many Arab nations coming against Jerusalem and Israel. Joel 3:16 The Lord roars from Mount Zion. His voice thunders from Jerusalem. Earth and sky tremble. But he will defend his people. Revelation 19:14 And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Joel 2:4 They look like horses. They run like war horses. As they leap on the tops of the mountains, they rattle like chariots. They crackle like dry grass on fire. They are lined up like a great army, ready for battle. As they approach, everyone is terrified. Every face turns pale. They attack like warriors. They climb the walls like soldiers. They all keep marching straight ahead and do not change direction or get in each other's way. They swarm through defenses, and nothing can stop them. They rush against the city. They run over the walls. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदाम Thank you, Jesus. तेरे प्रोग्राम, तेरे कामों के और तेरी कुदरत के खुदावंद हम सर झुकाते तेरे सामने। बेशक। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने सब कुछ हमें बता दिया है। सबसे पहले कि ये जो आपने अजीज़ बहनों भाइयों जो कुछ आपने देखा है ये बाइबल मुक़द्दस में सब कुछ लिखा हुआ है। और इसके बाद हम आपको सलाम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और पैम आप जी बिल्कुल ग्रीटिंग्स लेते हैं। शलोम, पीस, शांति आप सब में हमेशा बनी रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का ये वादा है जो उसने कहा है वो पूरा होगा। और किसके लिए होगा? हम सब मुकद्दसों के लिए। जैसे आपने अभी देखा कि जो मसीह में ईमान ला चुके होंगे वो ज़रूर खुदा के साथ जो है सुकूनत करेंगे और सलामती से रहेंगे। सो हमारी यीशु की तरफ से सलामती हमेशा हम आपस में बनी रहे। और आज का प्रोग्राम जो बाइबल की नबूवत है, जैसे आप रेगुलरली देखते हैं थर्सडे की शाम 9 o'clock जो फ्रेश एपिसोड होता है, जब तक खुदा ने ज़िंदगी दी इसको कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े आए हम दुआ करते हैं और शुक्र अदा करते हैं इस चैनल के लिए, इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए। खुदा तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदा, क्योंकि तूने ये मुमकिन किया कि तेरे कलाम को देखा जाए और खुदा जिससे हमें खुदा तसल्ली मिलती है और हमें और तैयारी बख्शता है। तो बाप इस वक्त सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देती हैं। लॉर्ड जीसस, सबसे ज़्यादा जो तूने कांटों का ताज पहना, अपनी मोहब्बत दिखाई और खुदा जो सारे दुख हमारा हिस्से में थे खुदा तूने अपने ऊपर ले लिए लॉर्ड जीसस। और आज खुदा हम तेरे नाम से कहलाते हैं। खुदा तूने हमें चुन लिया है। तेरा शुक्र करते हैं कि अपने कलाम को खुदा तूने हमारे अंदर रख दिया है, जिसको हम बांटते हैं, शेयर करते हैं। खुदा बाप तो जल्द खुदा इस दुनिया का इंसाफ करने वाला है। इससे पहले कि खुदा तेरा गज़ब भड़के, खुदा तेरी खुदा बादशाही की जो है ऐलान हो जाए, खुदा इससे पहले हमें तैयारी बख्श खुदा, सारी आफतों मुसीबतों से बचा कर रखना। और खुदा हम इस बात में खुश होते हैं कि तूने हमें सबसे पहले बता दिया है, खबरदार कर दिया है। सो इस वक्त खुदा हम तेरे आगे झुके हुए हैं। हमारे होंठों का ज़िम्मा ले और तमाम अजीज़ जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं इस वक्त खुदा उन सब के दिल दिमाग को खुदा अपने हाथों में ले, ताकि हम बड़ी बरकत पाएँ और बड़ी खुदा इस दिन बातों को, गहरी बातों को और ख़ास तौर पे नबूवत को हम समझ सकें जो तूने अपने नबियों के दोबारा अपने प्रॉफिट्स के ज़रिए खुदा जो कलाम में लिखवाया। खुदा तूने अपने प्यारे पाक रूह से हमें इसे समझने और सोचने की खुदा ताकत दे, ताकि हम खुदा तेरे साथ चल सकें और तेरा गहरा मसा इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। सारे ग्लोरी परिवार के लिए मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा, सरफराज के साथ मिलकर जो इस प्रोग्राम को मुमकिन करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। उन प्रेयर वॉरियर्स के लिए खुदा, फाइनेंशियल वॉरियर्स के लिए खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं तो और उन्हें सेहत दे और तगड़ा कर, ताकि खुदा तेरे कलाम को घर घर लेके जा सकें। हालेलुया लॉर्ड जीसस, तूने अपने लोगों को बड़ी खुदा तूने ट्रेजर्स दिए हैं, हिडन ट्रेजर्स दिए हैं खुदा, तूने मैना दिया है उन्हें खुदा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और खुदा हमारा पूरा ईमान है जब हम आज कलाम को देखेंगे तो हमारे दिल में अगर किसी के दिल में भी कोई शक, कोई शुबा हो तो खुदा तुझसे दूर करेगा। अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में सारा प्रोग्राम खुदा तेरे हाथों में, प्यारे पाक रूह मदद की जरूरत है। आए खुदा सारा जिम्मा ले लें यीशु के नाम। तेरा शुक्र। आमीन 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 आमीन।
आज का प्रोग्राम जैसे आप जानते हैं कि पिछले हफ्तों से काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं और डिमांड भी हो रहा है कि डीवीडी इनकी तैयार की जाए बहुत जल्द से, तो आपको जो है इन प्रोग्राम्स की डीवीडी मिल सकेगी ताकि आप इन्हें इंडिया, पाकिस्तान, जहां भी आपके अजीज़ हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ इस मैसेज को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक कि जब से मैं क्रिश्चियन हूँ, ये पहली मरतबा जो है ऐसे बाइबल प्रोफेसी यानी कि बाइबल की नबूवत के प्रोग्राम आपको अपनी ओन लैंग्वेज में मिल रहे हैं। तो ये सचमुच बड़ा एक मिरेकल इटसेल्फ है। खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज का प्रोग्राम है बाइबल प्रोफेसी। देखेंगे कि सीरिया जो आजकल ख़बरों में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारी न्यूज़ जो है मतलब ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे यूक्रेन का देख सकते हैं, सीरिया का जो है बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा है। तो हमने सोचा कि जो मतलब करंट इश्यूज़ हैं, जो मतलब हार्ड हिटिंग जो न्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, हम देखें कि बाइबल सीरिया के बारे में क्या कहता है। और मेरा साथ भी देंगे सरफराज, जब बाइबल भी पढ़ेंगे। और इस सबक को तैयार करने की, यानी कि ये मेरी अपनी सोच नहीं है, ये बाइबल की तालीम है। और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनको हम देखते हैं, सुनते हैं, उनकी स्टडी लेते हैं, देखते हैं कि उनका क्या ख्याल है। तो हम अपनी तरफ से नहीं, बल्कि ये मुकद्दस कलाम खुद जो है इसकी गवाही देता है। ये हमारे अल्फाज बहुत अच्छी बात की, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी अच्छी बात की चीज़ों के समझने के लिए ये मौका है। क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा है, इसका जवाब भी बाइबल मुकद्दस में है। बिल्कुल। जो भी हम मुकाशफा की किताब में से पढ़ते हैं कि और डैनियल की किताब में से पढ़ते हैं, हिजकियेल की किताब में से पढ़ते हैं, उनका सबका जवाब जो है क्या होने वाला है, कहाँ होगा और कैसे होगा और इसका नतीजा क्या होगा और खुदाम यीशु मसीह कब मतलब के और कहाँ उनके कदम टिकेंगे और क्या क्या होने वाला। अभी आपने फिल्म में देखा, लेकिन हम इसको जब हम बाइबल मुकद्दस में से पैम जब आप स्टडी करवाती हैं, मैं भी आपके साथ होता हूँ, तो बहुत से अजीज़ बहन भाई इस बात को पढ़ चुके हैं, मुकाशफा को पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो गहरी बातें हैं कि क्या होने वाला, हम सरसरी घर में तो एजुकेशन के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन अब गहरे तरीके से कि इसके जैसे बैठ के किसी चीज़ का हिसाब लगाना, ये मकसद है। जी प्लीज़ आप। जी सरफराज, क्योंकि अभी आज हमारे पास 1 घंटा है, तो इसलिए सारे मैं चाहूँगी कि जो सीरिया इन बाइबल प्रोफेसी है, यानी कि बाइबल की नबूवत में सीरिया का जो जिक्र है, उसे पूरा करना चाहते हैं। इंग्लिश में तो सीरिया ही आजकल आ रहा है। हाँ जी, लेकिन शाम हम कहते हैं पुराने, ठीक है, असीरिया जैसे इंग्लिश में सीरिया। जी, तो अभी जो है मॉडर्न डे सीरिया जिसे कहते हैं, इसको देखना है तो हमने लेना पड़ेगा मुकद्दस बाइबल से चैप्टर 11 द बुक ऑफ डैनियल वर्स 36 और इसके साथ ही चैप्टर 12 वर्स 3। इससे पहले हम कलाम की तरफ बढ़े। मैं देखूंगी कि हमारे साथ सामने मैप है, नक्शा है, हमारे सामने देखना पड़ेगा कि ये आखिर सीरिया है कहाँ। सरफराज जो है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ी सी मदद करें कि ये जो है सीरिया का मैप हमारे सामने है। हाँ जी, सीरिया जो है डमेस्कस दमिश्क की राह पे, मतलब सीरिया जो है इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री। हमारे पास शायद इतना वक्त नहीं हो कि आज हम इसको एक एक जगह को देख सकें, लेकिन इसमें हारान जगह जो है और एक दो और जगह है जिसको हम जिस पे गौर करेंगे। हैमत जो एक है जो बहुत उसका अहम रोल होगा, हैमत जो यहाँ की जगह है उसका बहुत रोल होगा, आप देख सकते हैं। और हिम्स जो नीचे आता है दरिया के पास आ जाता है। तो ये जो जगह है आपने देख लिया कि लेबनान इस तरफ है, बैरूट, और फिर आगे जाके देखें ऊपर जाके टर्की, तो उसके दरमियान में ये सीरिया है और इसके जो कॉर्नर्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी को लगते हैं, सो आपके सामने हैं। और इसके नीचे आए तो बाकी की जो कंट्रीज आपको मिलेंगी, लाइक यू नो इराक, नजर ऊपर हम टर्की को देख सकते हैं। ये परमजीत सऊदी अरेबिया, ये असल में ये पूरा मेसोपोटामिया का इलाका है जो इब्राहिम के टाइम के वक्त की बात मैं करता हूँ। तो मेसोपोटामिया में ये शाम का जो इलाका एक सूबा है, शाम का सूबा है। और इस इलाके सबसे पहले हेरोदस जो बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, इसको इरामी, चूंकि यहाँ लोग इरामी लोग रहते थे, तो इरामी भी इराम भी कहते हैं, लेकिन अब कैपिटल इसका दमिश्क बना। जी बिल्कुल। तो देखेंगे कि इसमें जो इस कौम का जो हाथ है नबूवत में यीशु के वापस आने से पहले जो है सीरिया का क्या रोल होगा। तो अब देखते हैं, जब हम बात करते हैं 2nd चैप्टर ऑफ डैनियल, जब उसमें देखते हैं हमने बुत को देखा है और कैसे फिर वो जो पत्थर पाँव को आके लगता है स्कैटर कर देता है, एशिस कर देता है पूरी जो जितनी भी हुकूमतें होती हैं
और उसमें जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है, वो जलाल फैल जाता है। इसका मतलब जो है यीशु ने जो इस दुनिया को बनाया है वो इसका मालिक है और कैसे वो इसको वापस भी लेगा। तो सीरिया की जो डिस्ट्रक्शन है, जो उसकी मतलब जो कह लें कि इस वक्त जिस तरह से उसको तबाह किया जा रहा है, हालांकि एंशंट प्रोफेसीज में हम देखने लगे हैं, उसकी बड़ी एक तगड़ी हिस्ट्री है डमेस्कस की, सीरिया की, और जो बाइबल इसे रिकॉर्ड कर चुका है ऑलरेडी, जो हो चुका है इसमें वो बाइबल में रिकॉर्ड हो चुका है। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर जो बातें हो चुकी हैं आज हम उन पे गौर करेंगे और जो होने वाली हैं लिखी हुई हैं तो वो क्यों करके ना पूरी होंगी। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात है। तो जो हिस्ट्री बाइबल ने रिकॉर्ड की उसको देखते हैं कि ये ऐसा एक दिन ज़रूर होगा। तो सीरिया जो है एक बहुत ही अहम अपना जो किरदार सरफराज खुदा के पर्पस और प्लान में जो है, खुदा के इरादों में है, खुदा की के नज़र में है, और ये एक बहुत तगड़ा प्लेयर होगा, यानी कि इस कंट्री का रोल बहुत बड़ा होगा दुनिया में से। सीरिया का जो है खुदा के इरादे में है सीरिया, तो इसलिए इनका बड़ा चैप्टर बता दें ताकि हमें लिख लें। तो हाँ जी, इसको देखेंगे कि डैनियल चैप्टर 11:36 में हम इसे पढ़ेंगे। अब हमने देखना है कि जो सीरिया का मैप है, वो जो ये वाला नहीं लेटर जो जिसमें मतलब वो जगह भी दी है कि कितनी जो थी अब्राहम से जो वादा किया था उसको हम देखेंगे। लेकिन इसमें जो है सीरिया जो है ये मतलब कह लें कि इज़राइल के नॉर्थ साइड पे पड़ता है, ठीक है। और इसके जो है यूरेफिटिस, इसको क्या बोला था आपने उर्दू में, यूफ्रेटिस को, रिवर को, हाँ जी, जो दरिया है अफरात, हाँ दैट्स राइट, दरियाए अफरात। और जो है इसको देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूफ्रेटिस रिवर जो है दरियाए अफरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप देख सकते हैं कि उस तरफ से ये इसमें हमारे पास वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल वो लाइन नज़र आ रही है, ये वो दरिया जो है बीच में से होता हुआ गुजरता है, और इसी तरह से इस तरफ को भी जो है वो टच करता है। और ऑफ कोर्स इन द बुक ऑफ रेवलेशन लेटर ऑन, आई थिंक इन चैप्टर 16 ये ऐसा वक्त आएगा बिल्कुल सूख जाएगा, लेकिन पिछले हफ्ते भी हमने इसकी तस्वीर देखी तो बड़ा भी मतलब ठीक लग रहा है। तो ये जो रिवर है इसको काफ़ी मरतबा जो है नबूवत में इसका जिक्र आएगा। यूफ्रेटिस जो रिवर है, दरियाए अफरात जो है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखना है, क्योंकि इसका बहुत बार जिक्र आएगा। इसलिए क्योंकि इस एरिया में जो है हैमत, जैसे मैंने कहा जो जगह है, अगर दूसरे मैप पे हमने देखा तो उस पे उसका जिक्र था। हैमत जो है ये एक बहुत अहमियत रखेगा, ये जगह जो है ना इससे बहुत मतलब लेना देना होगा। और जो सीरिया जो है बेसिकली बिब्लिकल टाइम से लेके अब तक जो थोड़ी बहुत ही चेंजेस आई होगी इसके बॉर्डर्स में या कह लें जगह में, लेकिन एज इट इज़ जो है बाइबल के टाइम की उसी तरह से अभी भी ये जो मुल्क है सीरिया उसी तरह से है। जैसे आप देख सकते हैं इजिप्ट का जो यहाँ से लाल लाइन लगी है, फिर आगे से देखें और उस तरफ देखें। अभी हम जब उसको पढ़ेंगे कि जो चैप्टर्स हमें मिलेंगे, जैसे फॉर जेनेसिस 25:20 में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो मैंने अपने उन टाइम में जो 415 BC का जो मैप देखा तो उसमें भी देखा कि कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब बाइबल की अकॉर्डिंगली जो है बिब्लिकल टाइम से जो बहुत उसी तरह से ही है ये जगह, ये मुझे बड़ी खुशी होती है एक्चुअली कि ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। तो इसलिए देख सकते हैं कि सीरिया का जिक्र बाइबल में ऑलमोस्ट 120 बार आता है। बड़ी बात है। सीरिया जो है मेनली 120 बार इसका जिक्र आता है। और क्या आता है, किस तरह जिक्र आता है कि ये जंग लड़ता है इजराइल के साथ, हमेशा इनकी लड़ाई झगड़ा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहती है, ठीक है। इसके दरमियान जो है ओल्ड टेस्टमेंट में, यानी कि पुराना नहीं, जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं तो बहुत सी जंगें जो थी सीरिया ने जो थे इजराइल के साथ लड़ी, इनका झगड़ना आना ये वो लोड्स ऑफ देम। और अगली बात ये खुशी की है कि जो हमारे जो नबी हैं, जैसे आइजक हुआ, यकूब हुआ, इनकी जो बीवियां थी वो सीरियन थी। हमारे पास तस्वीरें भी मैंने आज कोशिश किया उठाने की, जब आइजक को भी बीवी क्या चॉइस करना था तो उसके लिए भी अब्राहम ने उसको अपने नौकर को जो था इलेजर, उसको वहीं भेजा। और अलीअज़र भी शाम से चुना गया, वो भी वहीं से था, एग्जैक्टली वो भी बड़ा वफादार अब्राहम का नौकर था, वो भी सीरिया से ही था। तो देख सकते हैं हमारे जो पेट्रियार्क कहते हैं उन्हें, जो हमारे ईमान के बानी यानी के जो नबी थे, उनकी बीवियां भी इसी से सीरिया से थी। तो अब जब देखते हैं कि अगर इनके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पैदाइश की किताब 25 और उसका 20, जेनेसिस 25:20, पैदाइश यानी कि पहली जो बुक है 28:5, ओके। अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो 31
31 चैप्टर और उसकी 20 और 24 में आप पढ़ सकते हैं। और आगे अगर दमिश्क के बारे में आप जानना चाहें, जो डमेस्कस है उसकी बहुत मतलब ऐसी, अभी लास्ट ईयर तो बहुत सारे प्रॉफिट बाइबल स्कॉलर्स कह रहे थे कि जो दमिश्क यसाया 17 में जो लिखा हुआ है कि वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हाँ जी यसाया 17 में, लेकिन हम देखते हैं कि ये एक दिन हुआ, क्योंकि जो दमिश्क है, जो डमेस्कस है, वो सबसे पुरानी इनहेबिटेड यानी कि मतलब बसने वाला एक शहर है जो कभी भी बिब्लिकल टाइम से लेके अब तक कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। उसको मतलब अभी डमेस्कस की अगर तस्वीर हो तो आप देख सकते हैं कि मतलब बड़ा शानदार एक मतलब इसका नज़ारा है, खूबसूरत है, इस्टेब्लिश है हिस्टोरिकली हर लिहाज से जो है। लेकिन आजकल आप जब देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें जो है टेंशन है और तबाही मची हुई है। सो यसाया 17 आप अपने ओन टाइम में पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि जब साउल जो था दमिश्क की राह पे जब जा रहा था तो साउल का भी एक्सपीरियंस हुआ इसमें। जैसे साउल जो था बाद में पॉल, संत पॉल जिसे हम कहते हैं, वो भी जो था इसमें इसकी राह पे गया। और ज़्यादातर जो सीरिया को अब याद करते हैं तो हम देखते हैं कि इज़राइल के साथ इसकी काफ़ी यानी कि लगती थी। तो आगे देखते हैं कि जो हरन का सफराज जो था वहाँ अब्राहम रहते थे, जो सीरिया का एरिया था हरन में वहाँ जो थे उनके रिश्तेदार रहते, अब्राहम के रिश्तेदार भी रहते थे। और यहीं से वो अपनी फैमिली को छोड़कर जो था लैंड ऑफ प्रॉमिस की जो वादे की ज़मीन थी वो वहाँ आए, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं उन दिनों में किस तरह से लोग जो थे ट्रैवल करते थे, में कुछ अरसा रहे। हाँ जी, जी। तो ये पूरी अपने सारे जायदाद हर चीज़ मतलब सब जानवर सब कुछ लेके जो थे, पूरी जिनके पोजेशंस होते थे एक साथ ये चले जाते थे। तो ये खुदावंद के फजल से ये भी यहाँ रहे। और जैसे सफराज ने बताया कि उनके जो वफादार नौकर थे वो भी सीरिया से थे और उन्होंने उन्हें इलेज़र जैसे आई थिंक अली ऑल्सो कम्स नेम फ्रॉम एलेजर बिकॉज हमारे काफ़ी क्रिश्चियन जो हैं मतलब इस नाम को रखते हैं। ठीक है, जेनेसिस 13-14 अगर हम पढ़ें तो फिर हमें जो है वापस जो डैनियल की प्रोफेसी है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले पैदाइश की किताब, हाँ अजीज बहनों भाई, पैदाइश की किताब निकालिए 13 बाब और उसकी 14 देखें क्या लिखा है, 14वीं आयत है जी, 13-14। और लूत के जुदा हो जाने के बाद, जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 14, और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहाँ से शिमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नज़र दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारे पास सामने मैप है फिर से सीरिया, क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब जब ये बात खुदावंद जी कर रहे हैं तो बैथल जगह है जहाँ अगर हमें दूसरा प्लीज़ मैप दिखा दें जिस पे जो आउटलाइन किया हुआ है कि जो अब्राहम को खुदावंद जी बता रहे हैं, इस जगह पे खुदा का बंदा खड़ा है और खुदावंद जी उससे बात कर रहे हैं अब्राहम से, ठीक है। बैथल और ऐ यानी कि इस पे खड़े हैं और खुदावंद जी जो है वादा कर रहे हैं, वादे की ज़मीन जो है अब्राहम को दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसमें हम अगर देखें तो 13 और 14 पढ़ दें फिर से एक बार मेरे लिए। एंड क्या लिखा है इसमें, 13 बाब और 14 हम नहीं देखा। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, अभी इब्राहिम यानी अब्राहम नहीं था बने, नाम चेंज नहीं हुआ था, खुदा ने नहीं किया, अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहाँ से शिमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नज़र दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के ज़र्रों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के ज़र्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। ओके, यहाँ जो है खुदावंद अपने खादम से क्या वादा कर रहे हैं कि ये जो ज़मीन है जहाँ तक तेरी नज़र जाती, जो कह लें कि जो लाल सर्कल इस तरफ से आया इजिप्ट से और ऊपर तक जो है वहाँ तक जो मतलब खुदावंद जी उनको दिखा रहे हैं ये सारी ज़मीन तेरी है, ठीक है। हालांकि इससे भी मतलब जब लेके आए थे तो सारा उन्हीं का था, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ खड़े जब बैथल पे खड़े हैं तो खुदावंद कह रहे हैं कि देख अब्राहम जब लूत के साथ ये सब कुछ हुआ उन्होंने कहा, खुदावंद ने कहा अपनी आंख उठा, जो तेरी सारी ये जो ज़मीन तुझे मैं किसको देता हूँ, तुझे और तेरे सीड को यानी कि तेरी नस्ल को देता हूँ। अब नस्ल कौन है अब्राहम की? नस्ल मतलब अब्राहम से जो है आगे खुदावंद यीशु मसीह आए
और यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कौन है जो उन पे ईमान लाए हैं। कोई शक नहीं। ठीक है, तो सीड जो उनका हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक्चुअली हमें एंड पहले ही मिल गया है इस नबूवत का। अभी हमने आगे जाके देखा नहीं कि सीरिया का क्या रोल है और किस तरह से हमें ये जो है वसीयत जो हमारी है ऑलरेडी खुदा ने हमारे नाम कर दी है। बिल्कुल ठीक है कि अब्राहम देख मैं तुझे ये ज़मीन देता हूँ, अपनी नज़रें उठा देख, और जो तेरी डिसेंडेंट्स होंगे यानी कि यीशु पर ईमान लाने वाले होंगे, खुदा पे मुझ पे भरोसा करने वाले होंगे, ये मैं ज़मीन उनको वापस दूंगा। तो पहले जो मतलब एंडिंग पहले ही हो गया, अभी शुरुआत हुई नहीं है तो ख़त्म पहले ही हो गया कि यानी कि हमारा जो बनता है वो पहले ही हमें दे दिया। अब कैसे हमें मिला? गलतियां 3:29 में क्या लिखा है, इसे भी पढ़ना जरूरी है। गलतियों में चलते हैं, क्योंकि खुदा जी ने क्यों कहा कि अब्राहम देख तेरी औलाद को मैं ये बरकत दूंगा, यानी कि जो सीड है वो एक्चुअली क्राइस्ट है इन हिडन, जो आने वाली पुश्ते हैं सफराज वो क्राइस्ट है। हाँ जी, गलतियों, हाँ जी, गलतियों 3:29 3 और 29 गलतियों की किताब न्यू टेस्टामेंट में Galatians chapter 3 verse 29। कैसे हम मतलब अब्राहम के सीड कहलाएं ताकि ये जो हमारी वसीयत है जो हमें मिले। और आइए पढ़िए, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। फिर से अजीज बहनों भाइयों, गलेशियन यानी गलतियों की किताब उसका 3 बाब और उसकी 29 आयत इसमें पढ़ें। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो, अगर तुम मसीह के हो। बिल्कुल। तो अब जो सीड है, जब खुदावन ने कहा मैं तेरी सीड को इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है कि तेरी में जो औलाद है या तेरे डिसेंडेंट्स हैं, जो तेरी आगे बढ़ने वाली औलाद है, नस्ल है, उसको दूंगा। तो ये हमारी ऑलरेडी इनहेरिटेंस है, यानी कि ये हमारा ऑलरेडी है, तो हमें खुदा ने देना ही देना है। तो अब किस लिए देना है? क्योंकि हमने मसीह पे यकीन लाए, बपतिस्मा लिया और खुदा को कबूल किया, इसलिए जो है हम अब्राहम के जो आगे वारिस चलते हैं सफराज, उसमें हमारा हिस्सा है इस जमीन का। ठीक है, आमीन। और अब्राहम को ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस खुदा जी यहाँ दे रहे हैं कि ये देख तेरी है ये ज़मीन और तेरी पुश्तगी है ये ज़मीन, तेरे जनरेशंस की ज़मीन है। डन। जब खुदा कह देता है तो वैसा ही होता है। तो अभी देखते हैं कि इसलिए जेनेसिस 15:18 को पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। 15 और 18 इसके एंड का जो एक चैप्टर की जो पैदाइश की किताब उसका 15 बाब अजीज बहनों भाइयों निकाल लें। पैदाइश यानी जेनेसिस पहली किताब है बाइबल मुकद्दस में, इसका 15 बाब और इसकी वर्ष 18 आयत पढ़ें। यहाँ यूं लिखा हुआ है, उसी रोज खुदावन ने अब्राहम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक। अच्छा, देखा। अब देखिए मैप पे देखिए, ये वो सरहदें हैं जो अब्राहम को पहले से बाउंड्री दे दी। तो क्या था, अभी हम दूसरे मैप पे हम देख सकेंगे कि जो रिवर यूफ्रेटिस रिवर है और इस तरफ से दूसरा, प्लीज ला दे मैप जल्दी से, ये देख सकते हैं, देखिए ना इसको, उसके बिल्कुल रिवर के ऊपर। ठीक है, नाइल रिवर है इधर, ठीक है, नाइल है, उधर यूफ्रेटिस है। ठीक है, हाँ। तो क्या क्या खुदा ने क्या सरहदें बांध दी? खुदा ने कहा ये सरहदें, ये यहाँ से लेके वहां तक ये तेरी जमीन है। ठीक है, ओके। तो ये खुदा ने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिया और उन्होंने कहा कि नाइल रिवर से लेके और दूसरी तरफ जहां तक यूफ्रेटिस रिवर है सीरिया में, इजिप्ट से लेके सीरिया तक तेरी जमीन है। और रोमियो के खत में 4 हम पढ़ेंगे नहीं, वहां लिखा कि तू सारी दुनिया को जो है, जैसे हमने कहा कि सितारों की मानंद तेरी जो है औलाद होगी। तो रोमियो का खत बहुत सारे बिलीव करते हैं कि ये यहूदियों के नाम लिखा गया है। सो ऑब्वियसली जो वारिस हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो उनका प्रॉमिस फुलफिल होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि मैंने पहले इसका जिक्र कर दिया, डैनियल 2 में जब हम देखते हैं वो स्टैचू की इमेज देखते हैं जो सारी नेशंस को रिप्रेजेंट करता है ना, वो बुत जो है पूरी दुनिया की जो डिफरेंट नेशंस है, होल अर्थ पे पूरी सिविलाइजेशन, सारी सिविलाइजेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो है खुदा जो है मतलब आप देख सकते हैं हम पाँव तक आए हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा आखिरी वक्त में, दैट्स वाई हम आखिरी लम्हों में आखिरी वक्त में रह रहे हैं। तो खुदावन जी क्या कहते हैं कि ये जो है क्योंकि वो इमेज सारी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो आखिरी वक्त जो है, जो वादा किया है अब्राहम की औलाद से, वो उसे खुदावन कैसे पूरा करेगा। इसे हम इज़ीकियल 47 में, जिसमें देख सकते हैं, अगर पढ़ें तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आप पढ़ सकते हैं कि खुदावन ने इनको बॉर्डर्स दिए, जैसे सफराज ने भी किया कि सरहदें दे दी इब्राहिम को, उनको दे दी, मुल्क जो देना था वो वादा का मुल्क जो है उसकी सरहदें बताई हुई है पूरे के कहाँ तक आपकी हदूद होगी। ओके, शall we just look at Daniel 11:36, क्योंकि इस नबूवत को समझने के लिए
थोड़ा सा हमें और देख लेते हैं डैनियल हाँ जी। चैप्टर 11 वर्स 36 में देख लेते हैं। अब ये हमें पता चल गया कि सीरिया किस तरह से बाइबल में है और अब्राहम से खुदा जी ने क्या कहा था और किस तरह से ये जो ज़मीन है अब्राहम के जो वारिस हैं उनकी होगी। हाँ जी, हम देखते हैं दानियल की किताब, उसका चैप्टर 11 है और उसकी जो वर्स 36 है, 36 आयत। और बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और तकब्बर करेगा और सब माबूदों से बड़ा बनेगा और इलाहों के इलाह के खिलाफ बहुत सी हैरत अंगेज बातें कहेगा और इकबाल मंद होगा, यहाँ तक कि कहर की तस्कीन हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ मुकर्रर हो चुका है वाक़या होगा। हाँ, कहने से मुराद ये है कि जैसे कहला कि एंड तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि क्या होगा, क्योंकि अब्राहम की चीज़ें उसको वापस दी जाएगी। तो अब जो लेकिन एट दिस मोमेंट जो दुनिया का सिस्टम है, जो कुछ हो रहा है, वो खुदा को बाहर निकाल के हो रहा है। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। खुदा का प्लान क्या था? अब्राहम को दिया जा, बहाल और मल्टीप्लाई जाके, लेकिन उसके अब ऑपोजिट हो रहा है, यानी कि इंसान खुद स्मॉल जी वाला गॉड बन गया है। तो हाँ जी, तो वो अपनी मन मर्जी कर रहा है। तो इसलिए खुदा कहता है वो अपने आप को बड़ा एग्जॉल्ट कर रहा है, बहुत उठा रहा है कि देखिए जी हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास दौलत है, हमारे पास ऑयल है, लेकिन देने वाला कौन है? उसको बाहर निकाल दिया है। तो इसकी पहचान थोड़ी सी आगे करने के लिए चैप्टर 12 डैनियल, स्टिल स्टेइंग इन द सेम बुक, चैप्टर 12 वर्स 3 देख लेते हैं। हाँ जी, इसी दानियल की किताब में पढ़ते हैं चैप्टर 12 और उसकी वर्स 3। और अहले दानिश नूरे फलक की मानंद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक हो गए, सितारों की मानंद अब्दुल-आबाद तक रोशन होंगे। आमीन, आमीन। ओके, ठीक है। अब ये इस्टेब्लिश हो गया कि जिनकी चीज़ें उनको वापस मिलेगी और हमेशा हमेशा तक जो है ना वो चमकेंगे खुदा उनके। तो आगे देख लेते हैं कि इसको जो एज़ेकियल 47 में जैसे हर सरहदें मतलब बांध दी हैं, जो रखा 47 13 to 21। हाँ जी, और ये मतलब जो वसीयत कहते हैं, हाँ जी, वसीयत जो है उस वादा, हम जो वादा की ज़मीन है, हम जो खुदा ने अपने खादम को दिया है, हम उसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह का। एज़ेकियल 47 जी, इसकी 13 देखें। हाँ जी, एज़ेकियल की किताब, उसका चैप्टर है 47 यानी 47, क्योंकि ये जो बॉर्डर्स ऑफ द लैंड है, वर्ष कितनी आपने बताई? 13 से 21 तक। इसमें ये देखते हैं कि जो 12 कबीले थे इजराइल के, उनमें ये ज़मीन बांटी गई थी। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ये वो सरहद है जिसके मुताबिक तुम ज़मीन को तकसीम करोगे ताकि इसराइल के 12 कबीलों की मिरास हो। ठीक है, यूसुफ के लिए अब बाकी उन्होंने ये बांट बताई है कि क्या क्या किसको मिलना है, लेकिन यहाँ लिखा 13 आयत में कि सरहदें बताई हैं कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ये वो सरहद है जो आपने अभी देखी, जिसके मुताबिक तुम ज़मीन को तकसीम करोगे, इसके अंदर रहकर ज़मीन को तकसीम करोगे ताकि इसराइल के 12 कबीलों की मिरास हो। यूसुफ के लिए 2 हिस्से होंगे और तुम सब यकसा उसे मिरास में पाओगे, जिसकी बाबत मैंने कसम खाई कि तुम्हारे बाप दादा को दूं और ये ज़मीन तुम्हारी मिरास होगी। एग्जैक्टली, आगे और ज़मीन की हदूद ये होगी, ये मिलना बॉर्डर जो है। अजीज़ बहनों भाइयों, ये हदूद अगर पढ़नी है, अगर किसी को मतलब के पता ना हो कि अब्राहम को कौन सी हदूद और कहाँ कहाँ तक ये मुल्क और उनकी और उसकी जो औलाद थी उनको दिया, और जिसके वादा, जिस बेटे का वादा आगे हम पढ़ेंगे ना आखिर तक, तो हमें पूरी इसकी पिक्चर पता चलेगी। हाँ, तो ये मैं 15 आयत पढ़ देता हूँ। और ज़मीन की हदूद ये होगी, शिमाल की तरफ बड़े समुंदर से लेकर हतलून से होती हुई सिदाद के मदखल तक, हमात, बैरूत, सिब्रियम जो दमिश्क की सरहद और हमाद की सरहद के दरमियान है, और हसर हत्तीकून जो हौरान के किनारा पर है, और समुंदर से सरहद ये होगी यानी हसर ऐनान दमिश्क की सरहद, और शिमाल को शिमाली अतराफ हमाद की सरहद और शिमाली जानिब यही है, और मशर की फिर जनूब की और परमजीत फिर इन्होंने शिमाल की। ये सारी सरहदें खुदा ने हमें बता दी हुई है। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नाम भी है ना अभी तक वही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये नाम इसमें नाम जो हमद, जैसे मैंने हेमत पहले मेंशन किया, बिल्कुल अच्छा किया ये। हाँ, तो ये इसमें नाम जो है सारे लिखे हुए हैं, बैरूत अभी भी वो उधर ही है, इसलिए। हाँ जी, फिर आगे समुंदर से सरहद ये होगी यानी अच्छा 18वीं आयत, और मशरक में मशरक की सरहद हौरान, दमिश्क,
और गिलाद के दरमियान से, इसराइल की सरजमीन के दरमियान से यरदन पर होगी। शुमाली सरहद से मशरक समुंदर तक नापना, शुमाली सरहद से मशरकी समंदर तक नापना, और मशरकी जानब यही है। और जनूब की तरफ जनूबी सरहद ये है, यानी तिमर से मेरी बूत के कादस के पानी से और नहरे मिस्र से होकर बड़े समंदर तक जनूबी जानब यही है। 21 तक पढ़ेंगे आप? हाँ जी, मैं आगे जा रहा हूँ, 20वीं आयत में आ जाए। Okay. और उसी सरहद से हमाद के मदखल के मुकाबिल बड़ा समंदर मगरबी सरहद होगा, मगरबी जानब यही है। इस तरह तुम कबाइल इसराइल के मुताबिक जमीन को आपस में तकसीम करोगे। Thus you shall divide this land among yourselves according to the tribes of Israel. So that's very clear कि जो 12 कबीले थे इसराइल के, खुदा जी ने हुक्म दिया कि इन कबीलों के मतलब कबीलों को जो है ये ज़मीन के जो हिस्से इसमें तब्दील करना है, आपने डिवाइड करना है ना। ओके, देख लिया जैसे ये पैम इसराइलियों की ये सरहद थी, खुदा ने बताई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इसराइल का आज ये मुल्क है ये तो बहुत छोटा है, ये सरहद तो बहुत बड़ी है। मतलब बता रहे हैं कि बिब्लिकल टाइम्स में जब खुदा जी ने इनको दिया था, लेकिन आज किस तरह से है। वर्ष 13-14 में ये क्लियर हो जाता है कि ये जो ज़मीन थी अब्राहम से वादा किया था और ये इसराइल के 12 कबीलों की थी, और जो इनकी जो ट्राइब्स थे। 15 से 16 में इसके नॉर्दर्न बॉर्डर, वर्स 18 में ईस्टर्न बॉर्डर, वर्स 19 में सदर्न बॉर्डर, और वर्स 20 में वेस्टर्न बॉर्डर। मैप पे हम देख सकते हैं, वेरी वेरी क्लियर है। और अब हम देखते हैं कि नॉर्दर्न जो बॉर्डर है इज़ीकियल 15-17 में जाना पड़ेगा हमें। इज़ीकियल, हाँ जी, इज़ीकियल 15-17 15-17। You know, I really thank God for all Praise this the Lord. Praise the Lord. information जो खुदा के खादिम हमें भाई देते हैं। 15 बाब हिजकियल का और उसकी 17 आयत पढ़ते हैं। 17 I'm sorry, Ezekiel 15 did I say? हाँ जी। Okay, maybe not. ओके हाँ, वो हमने पढ़ लिया, सॉरी, ग्रेट जो मेडिटेरेनियन सी का जो लिखा है, हेमत का हमने बिल्कुल, सॉरी, हाँ जी, हमात का, उसमें 15-17 यही जो इज़ीकियल में अभी हमने पढ़ा है, 47 की 15-17 जो ग्रेट सी का समुंदर के बारे में, वो मेडिटेरेनियन सी को लगता है, ठीक है। हमात का जो लगा है वो भी हमने देख लिया। फिर जो खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो ये सब कुछ नहीं होगा उस वक्त, ठीक है ना, क्योंकि आखिर जो हुकूमत करेंगे खुदावंद यीशु मसीह करेंगे, वो हम थोड़ा सा हमारे पास क्लिप उसका भी दिखाएंगे। लेकिन अब जो ये सारा जो एरिया है जिसकी हमने जिक्र किया, बात की है, जैसे नॉर्दर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, सदर्न, वेस्टर्न, ये सारे बॉर्डर्स हैं इसके बताया हुआ, इतनी डिटेल में ये बाइबल में लिखा हुआ है। अब जो है कि रशिया के कंट्रोल में ये कैसे सीरिया आएगा सरफराज, दिस इज, क्योंकि जो गोग मगोग या आर्मगेडन की जो जंग आखिरी लगने वाली है, आखिर रशिया ने जो है उसे लीड करना है, वो किस तरह से अपना रास्ता बनाएगी और इस जगह में से होकर जो है इजराइल को अटैक करेंगे। राइट, आखिर में जो है कौन कौन से मुल्क होंगे, हाँ जी, नक्शा थोड़ा सा बड़ा करें, इनके साथ जो मुल्क होंगे उसका भी जिक्र आएगा। तो आखिरी जंग जो जूज मजूज की जो कहते हैं हम लगती है, आर्मगेडन की जो जंग लगनी है, वो किस तरह से इजराइल की पहाड़ियों तक पहुंचेंगे सरफराज, और किस तरह से जो है उसको वो बड़ी जंग लगेगी आखिर में, जहां खुदावंद यीशु मसीह खुद आएंगे और अपने दम से, अपने यू नो विद दिस अपने जो मुंह से जो है उनके जो निकलेगा सरफराज, जो कुव्वत निकलेगी, जो आग निकलेगी, उससे वो कैसे वो डिस्ट्रॉय करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो डैनियल नबी का सहीफा, उसके सरफराज चैप्टर 11 में चलते हैं। फिर लेट्स गो टू डैनियल चैप्टर 11। डैनियल 11, दानियल की किताब, उसका जो बाब है वो 11 है। ओके, 11 में देखें किंग ऑफ द साउथ, जल्दी से हम इसको ज़रा ना डिफाइन कर दें, कहाँ है। आई नीड टू फाइंड डैनियल। कैन यू जस्ट लुक एट डैनियल 11, क्योंकि इसमें जो देखेंगे कि हम 3 मेजर प्लेयर्स हैं, 3 जने हैं जो जिनका इसमें हिस्सा होगा, ठीक है। जो है किंग ऑफ द साउथ, हाँ जी, रूलर इन इजिप्ट जी, शाह जनूब, हाँ जी, हाँ जी, किंग ऑफ द नॉर्थ जो है वो है द रूलर ऑफ सीरिया, ठीक है। वो जो कह लें कि मतलब अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे जो रूलर होगा सीरिया का जो होगा, वो पता कौन थे सरफराज, जब अलेक्जेंडर जब उसकी जो मारा गया तो उसके बाद जो उसके 4 जो थे रूलर्स जो थे जिन्होंने हुकूमत की, फैल गया जैसे ग्रीक एम्पायर फैला था, तो उसमें थे सल्यूडिस, एक जो था सल्यूस्टिस, उसका नाम था, एम्पायर था। वो जो एम्पायर है वो डिवाइड हुआ था,
जो बना के अपना किंग ऑफ द नॉर्थ जो था उसमें ठीक है, वो था। ठीक तो है। ये भी मतलब हमारे लिए बड़ी क्लियर करने वाली बात है। उसके बाद वर्स 36 और 45 में हमें पता चलता है कि खुदा के फजल से जो उसको किंग करके रिफर किया गया है या हिम करके रिफर किया गया है। ठीक है। एंड there's a lot of information here and I'm just thinking कि मैं इसको जंप कर जाऊँ ताकि हमारे अजीज़ों के लिए ज़रा आसान बन जाए। डैनियल 11:36 से 45 तक पढ़ दें, that would really help us। 11:36-45 हमने पढ़ा अभी? हाँ जी, हमने 11वां बाब और उसकी 36 पढ़ा है। और बादशाह जो तकब्बर की बात की है, हाँ, तकब्बर, बिल्कुल, बिल्कुल। और बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा, हाँ, यानी फ्यूचर की बात अब जी, जी, बताई, जी, जी, और तकब्बर करेगा और सब माबूदों से बड़ा बनेगा। हाँ। वो जो बादशाह होगा इलाहों के हाँ, इलाह या, के खिलाफ, या खुदा उसको के मतलब खिलाफ। रिफर इस तरह से किया हाँ। जाएगा या वो किंग उसका हाँ। लिखा होगा या फिर हिम करके उसको जो रिफर ठीक किया है। होगा। सो 45 तक पढ़ दें। तो ये बहुत सी इलाहों के इलाह के खिलाफ, यानी खुदा के खिलाफ बहुत सी हैरत अंगेज बातें कहेगा, इकबालमंद होगा, यहाँ तक कि कहर की तस्कीन हो जाएगी, यानी इतने जुल्म की तस्कीन हो जाएगी, जो क्योंकि kings of the south आएंगे। जो कुछ मुकर्रर हो चुका है वाक़या होगा। 37 आयत, वो अपने बाप दादा के माबूदों की परवाह ना करेगा और ना औरतों की मरगूबा को और ना किसी और माबूद को मानेगा, बल्कि अपने आप ही को सबसे बाला जानेगा और अपने मकान पर माबूद हिसार की ताजीम करेगा, और जिस माबूद को उसके बाप दादा जानते थे सोना और चांदी और कीमती पत्थर और नफीस हदिये देकर उसकी तकरीम करेगा। वो बेगाना माबूद की मदद से मुहकम किलों पर हमला करेगा। जो उसको कबूल करेंगे उसको बड़ी इज्जत बख्शेगा और बहुतों पर हाकिम बनाएगा और रिश्वत में मुल्क को तकसीम करेगा। राइट, ओके, नाउ क्विकली वी कैन लुक एट चैप्टर 11 वर्स 2 सरफराज। इसको क्योंकि जो पूरा चैप्टर है ना इसमें सारी बातें 11 चैप्टर में है, तो इस चैप्टर को डिवाइड करना पड़ेगा, हिस्से बाय हिस्से हमें देखना पड़ेगा। तो वर्स 2 में देखते हैं जो पर्शियन एम्पायर है वो किस तरह से जो वेस्ट वर्ल्ड को जो है वो पुश करता है, किसके साथ, मीडी और पर्शियन, यानी कि रशिया का इसमें जब अब हाथ आना है तो किस तरह से ये मिलकर काम कर, यीशु के आने से पहले रशिया ने किस तरह से इसके अंदर जाना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं 11 चैप्टर वर्स 2। यहाँ लिखा है जी, और अब मैं तुझको हकीकत बताता हूँ। ये दानियल की किताब अजीज भाइयों, उसका 11वां बाब और दूसरी आयत। और अब मैं तुझको हकीकत बताता हूँ, फारस में अभी 3 बादशाह और बर्पा होंगे और चौथा उन सब से ज्यादा दौलतमंद होगा, और जब वो अपनी दौलत से तकवीत पाएगा तो सबको यूनान की सल्तनत के खिलाफ उभारेगा। क्या बात है, फिर वही जो था जो खत्म हो चुका था एम्पायर वही रेजरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, यूनान, तो हाँ यूनान, ग्रीस, और कैसे पर्शिया का इसमें भी जिक्र आ गया, ये सारे मिलकर फिर आगे हम जंप कर जाएंगे। लेट्स गो टू 3 और 4 भी पढ़ लें आप इसके साथ। 4 पढ़ते हैं, चौथी आयत पढ़ते हैं, सेम चैप्टर। और उसके बर्पा होते ही उसकी सल्तनत को जवाल आएगा और आसमान की चारों हवाओं की अतराफ पर तकसीम हो जाएगा, लेकिन ना उसकी नस्ल को मिलेगी और ना उसका सा इकबाल बाकी रहेगा, बल्कि वो सल्तनत जड़ से उखड़ जाएगी और गैरों के लिए होगी। ओके, नाउ दिस इज एक्चुअली जो उसकी अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था उसकी कैसे फैली हुई थी ग्रीक में, कैसी थी हर जगह ना, पूरा ग्रीक जो एम्पायर, ग्रीस के बारे में हम पढ़ते हैं कैसे उनका जो एम्पायर फैला हुआ था। देखेंगे ऑलरेडी नबूवत हुई थी अलेक्जेंडर के बारे में, तो क्या हुआ, हलाक हो गया, खत्म हो गया ना, कोई शक नहीं। ठीक है, और आगे वर्स जैसे 5 में देख लेते हैं, आगे देखते हैं जो साउथ का जो किंग है उसका क्या बना। और शाह जनूब जोर पकड़ेगा और उसके उमरा में से एक उससे ज़्यादा इक़्तिदार और इख्तियार हासिल करेगा और उसकी सल्तनत बहुत बड़ी होगी, और चंद साल के बाद वो आपस में मेल करेंगे, क्योंकि शाह जनूब की बेटी शाह शिमाल के पास आएगी ताकि इत्तेहाद कायम हो, लेकिन उसमें क़ुव्वते बाजू ना रहेगी और ना वो बादशाह कायम रहेगा ना उसका इक़्तिदार, बल्कि उन अयाम में वो अपने बाप और अपने लाने वालों और तक़वियत देने वाले समेत तर्क की जाएगी। नसीब फिनिश, उसका भी खत्म, सारा एम्पायर फिनिश, ऑल डन विद। अच्छा, जनूब की भी, हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है। अभी डैनियल चैप्टर 2 उसकी 7 और 8 में देखते हैं,
They answered again said, let the king of the servants in the dream will come. अच्छा Daniel- ये डैनियल भी मतलब सिमिलर सॉरी बात बताता है कि किस तरह से आखिरी दिनों में होगा. तो वी कैन जंप के आगे वर्स जो 31 35 इसके पढ़ लेते हैं. 11 की हाँ जी 11 की 35 क्योंकि पढ़ते हम हैं। इसे जो सारा अपने वक्त में पढ़ सकते हैं लेकिन जस्ट हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ था जब रिवॉल्ट हुआ था अंडर द मैकबीज. याद है जब इन मैकबीज ने अपने इजराइल को किया था हैप्पी हैनुका जब हमने हाँ जी, किया जी, था जी, प्रोग्राम, हाँ। वो वाला पीरियड इसमें मेंशन है 31 से 35. और बाज अहले फहम तबाह हाल होंगे ताकि पाक और साफ और बुराक हो जाएं जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, क्योंकि ये मुकर्ररा वक्त तक मुलतवी है। ठीक है 31 से 35. हाँ जी, मैं ठीक है। 31 से पढ़ना। हाँ जी 31 से 35. हाँ जी। ये मैकबीज ने जो मतलब जी किया जी था, उसकी ठीक और है? अफवाज उसकी मदद करेंगे और वो मुहकम मकदस को नापाक और दामी कुर्बानी को माकूफ करेंगे और उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को उसमें नस्ब करेंगे सही. और वो अहद मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। और वो जो लोगों में अहले दानिश हैं बहुतों को तालीम देंगे, लेकिन वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट मार से तबाह हाल रहेंगे, और जब तबाही में पड़ेंगे तो उनको थोड़ी सी मदद से तकवीयत पहुँचेगी, लेकिन बहुतेरे खुशामद गोई से उनमें आ मिलेंगे और बाज़ अहले फहम तबाह हाल होंगे ताकि पाक और साफ़ और बुराक हो जाएं जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, क्योंकि ये मुकर्ररा वक्त तक मुलतवी है। Amen, that's right. So सारी बातें क्लियर है इसमें. चैप्टर 11 में जो है आपको पूरा जो असीरिया का यानी कि सीरिया की जो डेसोलेशन है, जो उनका मतलब होना है आखिर में, सारा इसमें मिल जाएगा. लेकिन हमने इसको थोड़ा सा पिक किया है. और होली लैंड को कैसे फिर उन्होंने वो टेम्पल वापस लिया, मैकबीज ने क्लीन किया, फिर से बहाल. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से होली लैंड पे मतलब अटैक होता है इसराइल पे और दूसरी हुकूमत ले लेती है. ठीक है, उसके बाद जो था इट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ रोमन्स. ठीक है, तो उसके बाद जो था टर्क्स ने भी सरफराज इस पे काफ़ी देर जो हुकूमत की. उनके बाद जो था सो 1453 में जो था ये टर्किश एम्पायर के हाथ में आ गया. 1453 में 1453 में. ठीक है, इसका ये हो गया. एज अ टाइम गोज बाय बिकेम टर्किश एम्पायर. अब हमें जो देखना है हिस्ट्री जो है किंग ऑफ द साउथ एंड द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ द नॉर्थ. ठीक है, इनकी जो टेरिटरीज जो है यानी कि जो नॉर्थ एरिया ऑफ सीरिया है इनकी वहाँ है, वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या हुआ. ये जो ऑलरेडी हो चुका है, नबूतें पूरी हो चुकी हैं, ये सब हमने देखा. ये ऑलरेडी जैसे मैकबीज का जो रिवॉल्ट था उस दौरान हुआ था जब उन्होंने जूस का जो बुत रख दिया था, डिफाइल कर दिया था, कैसे उन्होंने जीता. तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये बातें जो नबूतें हुई ऑलरेडी ये कैसे पूरी हो गई हैं. सो दिस इज द वे वी कैन लुक एट के यो खुदा आखिरी वक्त में, आने वाले वक्त में करेगा, वो क्यों ना पूरा होगा. जरूर पूरा होगा. अगर किसी को शक है तो उसका शक क्लियर होता है कि बाइबल सचमुच सच्ची तालीम देता है. अब हम देख लेते हैं कि जो रोम जो था सरफराज 1664 BC में जो था उसने इजिप्ट को भी कॉन्कर कर लिया था. ये सारे उनके अंडर आ गए थे. ठीक है, उन्होंने अपनी मतलब इसको हुकूमत का अपना नाम दे दिया था. जो प्रोविंस ऑफ सीरिया थी वो भी जुडिया के साथ 135 AD में इमर्ज हो गई. इसी तरह से जो है रोमन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लगा जब दूसरे टर्क्स आ गए, उन्होंने टेक ओवर किया, तो इनकी जो थी ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता होने लगे. इसलिए जो सीरिया था वो बिजेंटाइन का भी हिस्सा बन गया. जब हम जाते हैं ना कि बिजेंटाइन पीरियड में ये चर्च बना था, तो वो जो दौर था बिजेंटाइन का, बड़े पक्के बिजेंटाइन की हाँ हुकूमत जी थी. हाँ. और क्या ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था ये जो थे अबाउट करें 395 AD में. ये मतलब बहुत सारी मुझे डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे पता है कि बोरिंग लगती है ना, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि कैसे टाइम टू टाइम ये सब कुछ हुआ. तो इसलिए जो फ्रॉम 640 to 1560 AD सीरिया ने जो था इसको काफ़ी बार जो इजराइल को भी मतलब जैसे कॉन्कर किया एक दूसरे के साथ, ये चलता ही रहा. इन 1516 फिर जो एक बार फिर हमला हुआ फिर से ले लिया गया. फिर सीरिया जो था कॉन्कर्ड बाय ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर जब आया तब उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया. फिर टर्क्स ने जो था अपना एम्पायर फिर से बिल्ड करना शुरू कर दिया. इन 1918 में 1918 में हमारे पास तस्वीर भी है, प्लीज ये साथ साथ दिखाते जाएं क्योंकि मैंने आज बहुत टाइम लगाया उसको उनको निकालने के लिए. देख सकते हैं जो टर्क्स थी उन्होंने भी अपना एम्पायर बिल्ड करना शुरू कर दिया. ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि
जो टर्क्स थे उनको सीरिया में से जो ब्रिटिश और अरब फोर्सेस ने निकाला था, ठीक है, जो टर्क्स थे, क्योंकि जब वो ऑटोमन एम्पायर आया सरफराज वो सब कब्जा करने लगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह इनको बाहर निकाला गया, धक्का दिया गया, पुश किया गया, ये हम देख सकते हैं। तो ब्रिटेन ने जो था इसका पूरा कंट्रोल ले लिया था, अरब ब्रिटिश और अरब 1918 1900, हाँ जी। तो फिर उसके बाद उसी के थोड़ी देर के बाद जो फ्रेंच है वो सीरिया का कंट्रोल ले लेते हैं। इनके बेचारों की काफ़ी मुसीबत इसमें आई है, लेकिन फिर से वो जो है इंडिपेंडेंस ले लेते हैं, पीस हो जाता है, इत्मीनान हो जाता है। लेकिन जो है इसमें देखा जाता है कि सीरिया में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा ही है। अब वॉर लग गया, थोड़ी सी सुकून हो गया, फिर से लड़ाई लग गई, फिर सुकून हो गया। अब देख सकते हैं जो किंग ऑफ द साउथ है 30 BC में से लेके 641 AD से जो रोमन एम्पायर का प्रोविंस जो था रोमन बन गया, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मतलब इसमें ये कि आगे पीछे होता ही जा रहा है, लेकिन वी कैन जस्ट कम टू द बिजेंटाइन एम्पायर नाउ कि कैसे वो इजिप्ट का वो जो था बिजेंटाइन एम्पायर था वो कैसे हिस्सा बन गया। फिर आगे 640 से लेके AD टू 1517 AD बहुत सारे डिफरेंट रूलर्स आए सरफराज जिन्होंने रूल किया, और ऐसा होता रहा सीरिया के साथ, बेचारों के साथ। 1517 में फिर से जो था उन्होंने इसका मतलब पता है, एनेक्स इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका मतलब वो अपने मुल्क के साथ या अपने कंट्री के साथ या अपने उसको हिस्सा बना लेते थे कि हमारा बेशक मुल्क जैसे बरतानिया था, दूसरे मुल्कों पे भी इन्होंने राज किया, जैसे हुकूमत चलाई, इसी तरह से इन पे भी ये हो जाता था। हाँ जी, जैसे ऑटोमन एम्पायर आया, टर्किश एम्पायर आया, ब्रिटिश आया, अरब्स आए, इन पे कब्जा होता गया, लेकिन फिर आज़ाद हो गए, फिर कोई आ जाता है, मतलब काफ़ी कमज़ोर ये रहे। 1882 में जो था ब्रिटेन ने जो था इनके लिए वो किंग ऑफ द साउथ बन गया, साउथ से ये आए और इन्होंने कब्जा किया, इसलिए ब्रिटेन जो था 1953 तक इनका कंट्रोल रहा सीरिया के ऊपर, ब्रिटेन का। ओके, और ये एक ऐसा सिस्टम बन गया था सरफराज जिसका खुदा से कोई लेना देना नहीं था। कितने देखिए इन पे अटैक हो रहे हैं, लिया जा रहा है, फिर सुकून हो जाता है, फिर लड़ाई लगती है। इसका मतलब है ये जो हमने बात पढ़ी ना कि ये खुद खुदा बन बैठे अपनी मन मर्जी से जो है इस मुल्क के साथ करते रहे, ठीक है। लेकिन जो खुदा का सिस्टम नहीं था, इसीलिए जो है खुदा इन मुल्कों को जज करने वाला है, उनकी अदालत लेने वाला है। सरफराज जिसने जिस ज़मीन को जिस मकसद के लिए ठहराया, अगर वो उस मकसद के लिए वो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती तो खुदा का गुस्सा उन पे ज़रूर आएगा। इट्स ट्रू इज़न्ट इट? अगर मेरी चीज़ को कोई ख़राब करेगा, मतलब उसको तोड़ेगा, तबाह करेगा, क्योंकि जब ये जंगें लगती थी इसमें खुदा सरफराज हज़ारों की तादाद में जानें ज़ाया जाती थी। जब जंग लगती है, लड़ाई लगती है, वॉर लगती है, अभी भी इवन लास्ट ईयर आई थिंक नियरली 8000 पीपल तब मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी सीरिया में, जो कुछ अभी कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी लड़ाई लग रही है, पता नहीं हज़ारों की तादाद में लोग मर गए। तो खुदा को इस बात की बहुत सख्त वो खुदा जो है गुस्सा करता है उन लोगों पे। ओके, आगे हम देखते हैं कि अब जो ये जो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बातें सरफराज थोड़ा स्लो डाउन हो गई, यानी इन इवेंट्स का एंड होने लगा 1918 से लेके पहले देख सकते हैं कि जब जैसे ब्रिटेन ने भी अपना हाथ मतलब लगाया इसमें और उन्होंने भी कंट्रोल लिया 1958-3 में छोड़ा। तो इसमें जो आगे जो है ब्रिटेन जो है इसमें फिर से इन्वॉल्व होगा सरफराज जब आखिर में जब ये लड़ाई लगेगी, क्योंकि जो टर्की भी कभी मतलब हाथ रहा है। ये सब कुछ करते करते जो है अब थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और देखते हैं कि बाकी का फ्यूचर जो है उसके बारे में क्या खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक क्या ख्याल है। आपने जो थोड़ी सी बातें टच की है ना, वो आज भी हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये हो रहा है। हाँ जी, एग्जैक्टली, दिस इज सो अमेजिंग है ना कि जो कुछ हो कह रहे हैं वही आज भी सीरिया के साथ वही हो रहा है। सो जो कुछ भी अब तक हुआ है, जो बाइबल ने कह दिया है, प्रेडिक्ट किया है, वो फुलफिल हुआ है। ओके, तो कहने से मुराद ये है कि आज हम मुझे लगता है इसको नहीं फिनिश कर पाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त दें ताकि किसी मोड़ पे हम पहुंच जाएं। ये है कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, एज क्रिश्चियंस हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि खुदा ने दिखाया है सो फार सरफराज जो कहा है वो हुआ है और डेट्स के साथ। बिल्कुल, ठीक है, जैसे हमने आप बाइबल में पढ़ा है उसी तरह से हुआ है। सो इसलिए बाइबल हमें ये एश्योरेंस देता है कि जो खुदा ने नबूवत कर दी है, जिस चैप्टर में जो कह दिया है, वो कौमों के साथ होता है। तो इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। यकीन जाने कि अभी आपने जो पढ़ा है भाई, सरहदें बिल्कुल खुदा ने बांधी हुई थी। हाँ। और अब्राहम को जो इलाका दिया और उसकी औलाद को जो इलाका दिया, यानी जो मुंसलिक थी इसहाक के साथ और फिर इसराइल के 12 कबीलों के साथ, याकूब को, चूँकि याकूब भी वहाँ दमिश्क में रहे, ठीक है ना, इस इलाके में। अगली जो बात सरफराज होनी है, जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट डैनियल 11:40। किंग ऑफ द नॉर्थ जो है वो फिर से रूलिंग पावर में आएगा
सीरिया का कंट्रोल लेगा और वो कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, और रशिया इज गोइंग टू गो इन। अच्छा, ये उसकी पेशन गोई कर दी 1140 में है ना, 1140 में रशिया, और ये रशिया जो है इसके हाँ अंदर जाएगा, इनसे दोस्ती करेगा। और हाँ। अभी भी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ी सी इस पे रोशनी सीरिया डाल के सकते ये हैं। सारा प्रॉब्लम रशिया का बीच में वो आ जाना, और ये जो कत्लो गारत है ख़त्म नहीं हो रही, चूँकि रशिया वहाँ से जाना नहीं चाहते दमिश्क से, यानी सीरिया से, तो इसलिए प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही, यानी जो बेगुनाह लोग ज़्यादा मरते जा रहे, फैसला नहीं हो रहा। सही तो बात पढ़ते है। हैं, और ख़ात्मा के वक्त 40वीं आयत, और ख़ात्मा के वक्त में शाह जनूब उस पर हमला करेगा, और शाह शिमाल रथ और सवार और बहुत से जहाज़ लेकर गर्दबाद की मानद उस पर चढ़ आएगा, और ममालिक में दाखिल होकर सैलाब की मानद गुजरेगा। ठीक है, 41 आयत। नहीं बस 40 हाँ से जी, पढ़ देते हैं। हाँ जी, बड़ी खूबसूरत इसमें सब कुछ Sure. बता दिया गया कि वो जहाज लेकर गिरदबाद की मानद उस पर चढ़ आएगा, और ममालिक में दाखिल होकर सैलाब की मानद गुजरेगा। सही बात है। यानी सीरिया के ये लिए है। ओके, तो ये जो क्लियर हो गया कि जो है रशिया जो है आखिर में इसकी क्या मतलब मूवमेंट होगी, और किस तरह से जो है इसमें दाखिल होगा, और किस लिए दाखिल होगा कि उस ग्लोरियस इज़राइल को 41 में मेरे इंग्लिश वर्ड में लिखा है, ही शैल ऑल्सो एंटर द ग्लोरियस लैंड, यानी कि इज़राइल जो है जलाली वो जो जगह है उसमें मैनी कंट्रीज के साथ, बहुत सारे मुल्कों के साथ जो है ये दाखिल होगा। तो मेरे ख्याल इसी पे छोड़ते हैं। 41 आयत पढ़नी पड़ेगी पैम। और जलाली मुल्क में भी दाखिल होगा, और बहुत से मगलूब हो जाएंगे, लेकिन अदूम और मुआब और बनी उमून के खास लोग उसके हाथ से छुड़ा लिए जाएंगे, और वो दीगर ममालिक पर भी हाथ चलाएगा, और कौमों पर भी, और मुल्क मिस्र भी बच ना सकेगा, बल्कि वो सोने चांदी के खजानों, मिस्र की तमाम नफीस चीज़ों, ये आगे सारी जंग का ये बिल्कुल ये सब कुछ होगा। लेकिन बात ये है बिल्कुल जो आखिरी जंग लगनी है, रशिया ने किस तरह से सीरिया के साथ जो हो रही है, डायलॉग हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, बैकअप कर रहे हैं, मतलब अमेरिका के साथ अब उनकी वो इतनी बात नहीं है जितनी उनकी इन मुल्कों के साथ हो रही है। आप देख सकते हैं ये रशिया जो जैसे यूरोप रशिया ये कैसे बन के ये ताकतें किन किन मुल्कों को साथ लेकर जो है इस ग्लोरियस लैंड में, जिसमें लिखा है कि उस जलाली ज़मीन यानी कि इज़राइल पे जाएंगे। तो छोटे से क्लिप के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद रखती हूँ कि खुदा को आपने अपनी ज़िंदगी दे दी है, डरने की बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जब लॉर्ड जीसस आएंगे तो हमें वो हमारे नाम को वो जानेंगे, हमें मेरे नाम से वो मुझे बुलाएंगे। हमें कोई डरने की बात नहीं है। और हमने देखा पहले कि एक रास्ता हमारे लिए खुदा अपनी कलीसिया को उठा के यस, तो इसलिए जो वक्त ये बाइबल की नबूवत हो रही है, ये हम सबको सीखने का एक मौका मिल रहा है, और हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है जैसे अपोस्टल पॉल की थी, डैनियल नबी की थी, इसी तरह हो जानी चाहिए ताकि हम नबूवत को समझ सकें और यीशु को पहचान सकें। तो इस क्लिप के साथ आपको छोड़ते हुए आपका शुक्र अदा करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, जय मसीह। Gathering against Jerusalem and Israel. It will be in the valley of Medigo, where this much published Battle of Armageddon will take place. और जो सारे इकट्ठे हो जाएंगे कैसे अटैक करेंगे, और आप देख सकते हैं कि लॉर्ड जीसस जो है उनके मुंह से जो सफास जो दम निकलेगा, जो ब्रेथ निकलेगा, उसी से जो है सारी अपनी फौजों के साथ जब होंगे तो हलाक हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से आग उनके मुंह से निकलेगी, और जिससे जो है जो भी जितने जंग करने के लिए पूरे मुल्क आएंगे, रशिया जिनको साथ लेके आएगा, आखिर अंजाम उनका ये होगा।